Ma'am, we cordially extend our heartiest welcome to you. We would be starting off very soon. We're just waiting for our principal to join in. Kindly cooperate, everyone. Good afternoon to all. I welcome our college principal, Dr. Mukesh Agrawal, sir. I welcome you, sir. Whenever we call you, you always guide, motivate, and encourage us. I welcome our college vice principal, Dr. Krishna Sharma ji. She will also join very soon. And I welcome to our speaker of this webinar, Ms. Sonal Goyal ji, who is an IS of 2008 batch, and she is also a graduate from the University of Delhi from Sriram College Commerce, Sriram College of Commerce in Become. So I welcome you, ma'am, and I all Thank you so welcome much. all other guests. I welcome Dr. Anita Parned from Department of Statistics, DU. She has also joined earlier. Dr. Kusum Chadda, Kaushik ma'am has also joined. The topic of this webinar is youth power taking India ahead. We know that the fate of India is in hand of our youth, and youth are immense power to lead the country. Youth is the trustee of prosperity. Youth is happy because it has capacity to see all the beauty. Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old. Older men declare war, but it is youth that must fight and die. So there is huge power with youth. We have to channelize the power and give them proper direction. I hope today's topic will give new direction to the youth, and youth will be benefited and develop new approach to serve the nation. So I carry forward this program, and I uh, ask to this Pratiksha Tripathi to carry forward this program. Thank you so much, sir. Pratiksha Tripathi. Yes, sir. Chanakya rightly said, and I quote, "The world's biggest power is its youth and beauty of a woman." Good evening to our honorable guest speaker, Mrs. Sonal Goyal, our respected principal, Sir Dr. Mukesh Agarwal, our respected vice principal, Dr. Krishna Sharma Madam, our program officer, Mr. Sanjay Kumar Singh, our co-convener, Dr. Aparna Pandey, our esteemed faculty members of Delhi University, and all our fellow mates. I extend a warm welcome to all of you. We at NSS PGDAV take immense conceit in conducting this inspiring webinar by the youth and for the youth on the topic Youth Power Taking India Ahead. परिवर्तन विकास का है, पर्याय युवा शक्ति जब सजग हो जाए. Before we commence with the event, I would request our principal, Sir Dr. Mukesh Agarwal, to share his profounding words with us. Sir, please. थैंक यू प्रतीक्षा. सबसे पहले तो मैं पीजीडीवी कॉलेज की एनएसएस यूनिट की इस वेबिनार में जो हमारी आज की गेस्ट स्पीकर हैं सोनल जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं. आवाज आ रही है बेटा? एम आई ऑडिबल? प्रतीक्षा, आवाज आ रही है? आ रही है सर. बिल्कुल क्लियर है सर. ठीक है. थैंक यू. सोनल जी का मैं स्वागत करता हूं. इसके अलावा जो हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे दूसरे फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबका मैं इस मंच पर स्वागत करता हूं. मैं ये देख रहा हूं कि संजय जी जब से एनएसएस का काम उन्होंने संभाला है, सबसे बड़ी तेजी के साथ इस सारे काम में लगे हुए हैं, और ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि पीजीडीवी कॉलेज की एनएसएस यूनिट, जो एक समय इंडिया की बेस्ट एनएसएस यूनिट थी, अब धीरे धीरे पिछले 2 सालों के समय में भी और अब जब से संजय जी आए तब से भी लगातार उसी तरफ बढ़ रही है. लगातार ये लोग काम कर रहे हैं. और जब मैं एनएसएस कहता हूं तो निश्चित रूप से ये हमारी युवाओं की टीम है. हम हो सकता है उसमें संजय जी या मेरे जैसे कुछ लोग कभी कभी जब हमसे वो सलाह लेते हैं तो हमको सलाह भी देते हो, लेकिन ये काम युवाओं का ही है. और ये राष्ट्रीय सेवा योजना है. ये राष्ट्र को आगे ले जाने वालों की योजना है, और राष्ट्र को आगे ले जाने का काम यूथ कर सकते हैं. हमेशा से ही यूथ करते रहे हैं. अब मुझे अच्छा लगता है जब आपकी आज की स्पीकर भी, आज ने जो आपने बुलाया है उनको, वो भी हमारे युवा वर्ग से ही आती हैं. एक आईएएस ऑफिसर भी हैं, शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान से भी जुड़ी हैं, तो उस नाते से भी वो युवाओं से जुड़ी हैं.
युवाओं को लेकर बड़े अच्छे अनुभव उनके पास होंगे और वो अनुभव आज हमारे साथ वो शेयर करने वाली हैं। मैं राष्ट्र को आगे ले जाने में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में युवाओं की भूमिका के ऊपर क्या चर्चा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि युवा ही राष्ट्र होते हैं। अगर किसी देश का युवा सुसुप्त है, सोया हुआ है, जागृत नहीं है, तो राष्ट्र आगे बढ़ नहीं पाएगा। राष्ट्र जो भी जितना भी है, उस राष्ट्र के विकास करने की सारी संभावनाएं धूमिल होती जाएंगी। आप हमारे पुराणों को उठाकर देखिए, इतिहास को उठाकर देखिए, आज वर्तमान को देखिए। जब भी जिस भी काल में आप देखेंगे, चाहे वो राम के द्वारा रावण का वध हो, कृष्ण के द्वारा कंस का वध हो, स्वाधीनता संग्राम में युवाओं की भूमिका हो, या फिर आज जो भी कार्य युवा कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा हमारी ही टीम है, और सिर्फ हमारी टीम नहीं है तो पूरे देश भर में एनएसएस और ऐसे दूसरे जो भी संगठन हैं, वो उन सब में युवा आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। और इसीलिए कभी ध्यान आता है कि जब कभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के बारे में चर्चा करते हैं, राष्ट्र के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो हमेशा युवाओं की बात करते हैं। वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जब जब भी वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो हमेशा एक चीज और भी इसमें कहते हैं कि देश की आधी से अधिक जनसंख्या युवा है, और ये युवा ही हैं जो देश को आगे ले जा सकते हैं। राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की हो सकती है, इन्हीं की होती है। और इसलिए राष्ट्र को लेकर, देश को लेकर जितनी भी योजनाएं वो बनाने की बात करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उसके केंद्र में वो युवाओं को रखकर देखते हैं। हम देखते हैं कि भारत जैसे देश में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, और उन सब समस्याओं का हल, और आज तो दुर्भाग्य से देश में ये कोरोना ने एक ऐसी विषम स्थिति पैदा कर दी है कि जिसमें हम सब एक प्रकार से अपने आप को विवश पा रहे हैं। लेकिन इस समय में भी मैंने महसूस किया, खुद अपने कॉलेज को लेकर मैंने महसूस किया कि जिस समय लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारे कॉलेज से, हमारे एनएसएस के और हमारी एनसीसी की टीम्स आगे बढ़कर उन्होंने इस सारे काम में सहयोग दिया है, योगदान दिया है। तो जो भी योजनाएं देश की बनती हैं, उस सब में भी, अब जैसे मुझे ध्यान है, मेक इन इंडिया की चर्चा मोदी जी करते हैं, तो ये जो मेक इन इंडिया की चर्चा वो करते हैं, तो निश्चित रूप से ये युवाओं के माध्यम से ही आगे बढ़ने वाली योजना है। वो चाहते हैं कि पूरे विश्व में हर जगह इस बात की चर्चा हो कि ये चीज, ये प्रोडक्ट भारत का है, ये चीज भारत में बनी है। अभी पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने इस प्रकार का जिक्र किया कि भाई चीजें भारत में बननी चाहिए, भारत को आगे बढ़ना चाहिए, हमें भारत को आगे बढ़ाना है, और ये काम युवाओं को ही करना है। मुझे लगता है कि ये एक छोटी सी बात है जिसकी मैंने चर्चा की है, लेकिन इस पूरे युवाओं को लेकर किस प्रकार की युवाओं की भूमिका हो सकती है, और युवा किस किस प्रकार के काम आगे कर सकते हैं, राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को आगे ले जाने में उनकी क्या भूमिका रह सकती है, इस पर विशेष चर्चा तो सोनल जी को करनी है। मैं सोनल जी एक बार पुनः अपने इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं, और आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा और सोनल जी को सुनने का मौका दिया। धन्यवाद। Thank you so much, sir. I would now like to request Dr. Ranjita Pandey, Madam, Assistant Professor in Department of Statistics, Delhi University, to share a few words with us. Thank you, Pratiksha. A very good evening to respected Principal Sir, esteemed professors and dear students. Today on this platform provided by PG DAV College, discussion on the topic Youth Power Taking India Ahead is being conducted. I would say a few words. Youth is often regarded as the torchbearer of the society and progressive civilization. This transitional stage of life leads from the innocent, carefree childhood to a more responsible adulthood. Over 2 decades of my teaching career, I had interaction with thousands of young people and found them to be the most optimistic people on earth. They are full of courage, energy, enthusiasm, and vitality. They have belief and faith in honesty and truth. They have goals and determination to achieve them.
I consider education to be a crucial key to knowledge, confidence, and therefore to empowerment. Education sharpens logic, reasoning, and scientific temperament. Since in India, youth comprises approximately a quarter of the total population, therefore, educated youth is our natural beacon of hope towards bringing peace, scientific progress, and economic equilibria in our country by resolving conflicts, eliminating extremism and intolerance from the mindsets. Thank you. Over to the organizers. Thank you so much, ma'am. Sanjay sir, has our Yes, Vice yes. Principal Madam joined? Ma'am has not joined. Please, Okay, sir. please, I'll commence. next. Yes. Franklin D. Roosevelt rightly said, and I quote, "We cannot always build a future for our youth, but we can build our youth for the future." It is said that India has more than 50% population below the age of 25 and 65% below the age of 35. With topping the list as the country of the world's largest youth population, it is needless to say that the entire world is eyeing India as a potential source of technical manpower. Indian youth has the power to transform our country from developing nation to a developed nation. To further enlighten us on this topic, we have amidst us Mrs. Sonal Goyal, who is an Indian Administrative Service Officer of the 2008 batch. Dedicated to the service of the nation from past more than a decade, Madam is presently posted as CEO GMCBL, that is Gurugram Metropolitan City Bus Limited, and additional CEO GMDA, that is Gurugram Metropolitan Development Authority, Haryana. Having secured an All India rank 13th in Civil Services examination, Madam joined in Tripura cadre and has held various significant positions. She has put in more than 15 years of dedicated service towards the nation, including 12 years in civil services. Madam pursued her BCom honours from SRCC, Delhi University, and was CS from ICSI, New Delhi. Madam also completed her LLB from Faculty of Law, Delhi University, and MA in Public Policy from IGNOU. Apart from this, Madam is also a TEDx speaker and was selected in top 25 Women Transforming India by Niti Aayog, United Nations, and MyGov in September 2016. There goes an endless list of many more achievements and acclamations that ma'am has received in her entire career, which even if we start naming, it won't suffice. So I would now request Madam to mesmerize us with her words. Madam, over to you. Thank you so much, Pratiksha. Respected principals, all the members of NSS-PG DAV, all the viewers who have connected us today in the webinar, I am extremely happy to be part of this very important and relevant webinar being organized by the NSS PG DAV team. So which talks about the role of the youth in building our nation, in development of our nation. As we can see, यहाँ पे आज participants mainly young India है. As very rightly the earlier speakers have pointed out that India is the youngest country in the world. So अगर हम demographic dividend की बात करें, so entire world में our country has the highest percentage of people who are in the age group of 15 to 45. So if we see the demographic dividend, so in the age group of 15 to 45, at the international level, at the world level, India is blessed to have this productive population, which is very important to ensure that our country is moving positively on the path of development. So why actually we need to give that kind of orientation or give that kind of support or that kind of a direction to the youth. So I feel like I have been now working. Yesterday only I completed my 12 years in the civil services as an IAS officer. And prior to that, around 3 years, I was working in private sector. So it is like 15 year plus I have been having my work experience, including both private and the civil services thing. So
what we have been seeing is that youth is such a stage, as very rightly mentioned, that youth is a stage where one is in transition. So one is in transition from childhood to being a mature adult. So the kind of orientation an individual has, the kind of mindset development an individual has, a male or a female, I'm talking about both. So that kind of reorientation and that kind of development, or that kind of having that positivity, youth is the time in anybody's life to have that kind of a transition. एंड जो भी विचार हमारे इस युवा अवस्था में बिल्डअप होते हैं, आई थिंक उन्हीं विचारों के साथ में एक व्यक्ति आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति, उसको अपने समाज के लिए क्या करना है, उसको अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए क्या करना है, ये विचार जो है इसी टाइम पीरियड में जनरली डेवलप होते हैं। और अगर ये अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्टिवली डेवलप हो, if they are able to use this, if we are able to use this time period or this this age group positively for the benefit of our nation, then nothing like that. So सब लोगों ने बहुत सारा कुछ सुना है, I mean nothing new I would be saying in my in my deliberation. We are already aware of, we have been listening कि youth is the power of the country, और यूथ के ऊपर ही निर्भर करता है कि हमारे देश की आगे प्रगति, उन्नति कैसे होगी। और जिस तरीके से आज के युवा, स्पेशली भारत में, हम जिस भी फील्ड में देखें, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे वो हमारी एजुकेशन की बात हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो, तो बहुत यंग एज में इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स की बात हो, डिफरेंट लेवल में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा वन अ वेरी यंग इंडियन एट द एज ऑफ 20, he has become the super human calculator, beating the record of our own Shakuntala Devi ji. तो अंशुल बने हैं सुपर फास्ट ह्यूमन कैलकुलेटर, एंड he has beaten the record at a very early age of, that is only 20 years of age. Recently हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैव डन इट्स फेलिसिटेशन सेरेमनी, जिसमें उन्होंने खेल रत्न अवार्ड दिए लास्ट वीक 29th of August को। So all these sportsmen are so young, they are brimming with confidence. चाहे हम खेल रत्न की बात करें, चाहे हम द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें, चाहे हम अर्जुना अवार्ड की बात करें। So what I mean to say is that कि ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है इंडिया में जिसमें हमारी देश की युवा पीढ़ी हमारे देश का नाम रोशन नहीं कर रही या हमारे देश का गौरव नहीं बढ़ा रही। So taking it forward, so when I'm saying that youth is the potential power, and the development of our nation depends on the orientation and kind of training we are giving to the youth. It is also important for the society. It is also responsible for all the institutions, whether it is an educational institution, whether it is administration, चाहे वो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने यूथ को उस तरीके की कैपेसिटी बिल्डिंग दें। So what I'm trying to say is that when we are expecting the youth to perform, so it is also the responsibility of the society. It is also the responsibility of the entire ecosystem in which that particular individual is growing up, to ensure that he or she develops that appropriate skill sets. So हम skill sets की बात करें तो अगर कोई फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली अगर कोई कैंडिडेट आफ्टर 12th नहीं कर पा रहा है, then government has various kind of vocational training institutes. So we have vocational for higher education, vocational training के लिए बहुत सारी आज के दिन में different states में different initiatives लिए जा रहे हैं, so that at least the youth becomes financially independent. And this becoming financially independent is much more, I would say, required or much more needed, so as to say, for the women. I always feel if a female is financially independent, she is more empowered. And if she is more empowered, she can actually make the society around her more and move forward. So अगर हम एक फीमेल को हम सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करते हैं, तो एक
महिला के साथ साथ वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू एम्पावर द एंटायर इकोसिस्टम जिसमें वो लेडी काम करती है, जिसमें वो लेडी रहती है. सो हर फैमिली विल बेनिफिट आउट ऑफ हर एजुकेशन. हर इकोसिस्टम विच इंक्लूड्स जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी स्कूल में एज अ टीचर काम कर रहे हैं या किसी कॉलेज में. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि skill sets, capacity building, training and orientation providing to youth is very important responsibility for us as a society, and it is much more important to give all these platforms, to give all these arenas to the females of the society. क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसी काफी सारी जगह है, ऐसे काफी सारे जगह है जहाँ पे आज भी महिलाओं को शायद वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें वो नहीं मिल पा रही है. ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज. आई मीन if I speak about my own experience, so I belong to a middle class family based in Panipat district in Haryana. So मेरे फादर सीए हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन आई मीन सीए का प्रैक्टिस दिल्ली में आके एस्टैब्लिश किया. तो फ्रॉम आई वुड लाइक टू शेयर माय ओन एग्जांपल हियर. सो जब मैं ग्रेजुएशन में थी मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में पता लगा. हमारी फैमिली में इससे पहले सिविल सर्विसेज में कोई भी नहीं था, और जब मैंने ये बात डिस्कस की ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में थी, मैं वो सीएस में कर रही थी, सीएस का सेकंड स्टेज मेरा कंप्लीट हुआ था. सो व्हेन आई डिस्कस दिस थिंग विद माय पेरेंट्स, सो माय पेरेंट्स इनिशियली वेरी वेरी एप्रीहेंसिव. उनको बहुत ऐसे लगा कि जब ये हमारी बेटी सीएस कर रही है और श्रीराम कॉलेज अच्छा कॉलेज है, इसमें उसका एडमिशन हो गया एंड शी वुड कंप्लीट हर ग्रेजुएशन एंड मे बी इन अ ईयर और टू शी शुड बी गेटिंग मैरिड. एंड अगर सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो एटलीस्ट 2-3 साल लग जाते हैं एंड तैयारी बहुत टफ है, उसके बाद सिलेक्शन हो ना हो ये भी कंफर्म नहीं है. सो ऑल दिस वर द एप्रीहेंशंस व्हिच माय फैमिली हैड, बट व्हेन आई हैड दैट डायलॉग कि नहीं मुझे एक बार तो देना है, बिकॉज आई थॉट कि सिविल सर्विसेज इज अ प्लेटफॉर्म which will enable me to do something good for the society. मुझे ऐसा बहुत अंदर से फीलिंग आया कि मुझे एक बार तो एग्जाम देना है, एंड वंस आई गिव इट maybe I'll get that opportunity to serve the nation and the society directly, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए बच्चों को शायद डायरेक्टली नहीं मिलती है. तो जब मैंने ये प्रस्ताव रखा, मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपना प्रोफेशनल करियर जरूर कंप्लीट कीजिए. सो देन आई 2003 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ. 2004 में मैंने सीएस कंप्लीट किया और 2004 में ही फिर मैंने लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने एडमिशन लिया. मैंने अपना पार्ट टाइम जॉब है सीएस स्टार्ट किया और साथ ही साथ मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी. तो 2004 से लेकर 2007 तक ये 3 चीजें मेरी लाइफ में पैरेलल चली. तो सिविल सर्विसेज की तैयारी पे मेरा मेन फोकस रहा. उसके साथ साथ मैंने लॉ कंप्लीट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से. इट वाज अ रेगुलर कोर्स एंड ऑल्सो आई डिड माई पार्ट टाइम जॉब एज कंपनी सेक्रेटरी इन वन ऑफ द अंडरटेकिंग्स ऑफ हीरो होंडा ग्रुप की एक कंपनी थी. तो मेरा सिलेक्शन हुआ सेकंड अटेम्प्ट में एंड आई वाज सिलेक्टेड इन 2008 विद ऑल इंडिया रैंक 13. और जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा रैंक 13 होने के बाद मेरा त्रिपुरा कैडर आया. सो फ्रैंकली मेरा पूरा टाइम मैं इधर ही रही थी, हरियाणा दिल्ली ही रही थी. तो त्रिपुरा जब मैंने जाके ज्वाइन किया तो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा इन द टर्म्स ऑफ द कल्चर. बंगाली डोमिनेटेड स्टेट है, थोड़ा कनेक्टिविटी का भी इशू है क्योंकि it has only flight connectivity if one has to go from Delhi. Land route is there but it is consuming too much of time, like 1 week लग जाता है if you go from through road. So but मैंने जब ज्वाइन किया तब मुझे लगा कि शायद these people also need our services. And जितना भी मेरा पोस्टिंग रहा है अभी तक 2009 से 2016 मैंने त्रिपुरा में काम किया. फिर मैं जुलाई 2016 में मैं हरियाणा आई and I am on inter cadre deputation at present. तो त्रिपुरा में मेरा 7 साल से ज़्यादा मेरा जो काम रहा पूरा फील्ड में ही रहा. I was SDM, ADM, CEO of अगरतला कॉर्पोरेशन, then I was DM and collector गोमती डिस्ट्रिक्ट. और हरियाणा में आने के बाद में मैं फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में रही. मैं डिस्ट्रिक्ट झज्जर में एज डिप्टी कमिश्नर रही. फरीदाबाद में ही मेरे को और 2 पोस्टिंग्स रही और टिल रिसेंटली आई वाज इन गुरुग्राम. तो ये जो सारी 12 साल की सर्विस मेरी रही, मुझे एक ही चीज मैंने देखी है अपनी अपने करियर में एज सिविल सर्वेंट, दैट कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट.
if you want to take any initiative forward, so चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान की बात हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात हो, चाहे जल शक्ति मिशन की बात हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को लोगों तक लेके जाना है, then there is no other way out than to make it a community mobilization, to keep it through people's involvement. तो मैंने जहां भी मेरी पोस्टिंग रही, मेरी कोशिश यही रही कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करते हुए लोगों तक से जुड़ते हुए प्रोग्राम्स को आगे लेके जाऊं, और काफी हद तक सफलता भी मिली। और बहुत खुशी होती है मुझे ये बताते हुए कि काफी जगह में यूथ जो है, यंग इंडिया है, दे टेक द थिंग्स फॉरवर्ड, स्पेशली स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, और जितने भी हमारे ऐसे फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें यूथ ने अपने लेवल पे आके काम किया। और आज जो इश्यूज हम सोसाइटी में देख रहे हैं, ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन भी आज कुछ स्टेट्स में काफी ज्यादा केसेस उसमें रिपोर्ट होते हैं, और जितने रिपोर्ट होते हैं शायद उससे ज्यादा जो है वो अनरिपोर्टेड रहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो द इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सो द क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी आज के दिन में, I would not say that they have increased, but yes, the way we are seeing off and on, कोई ना कोई एक मेजर ऐसा सोसाइटी को शेक करने वाला कोई इंसिडेंट हो जाता है, जिससे हमको सोचना पड़ता है कि क्या ये हमारी सोसाइटी की परवरिश क्या ठीक है, क्या हमारी यंग जनरेशन की परवरिश ठीक है। Jessica murder case, or for that matter, I mean, there are various things which we can, which we should ponder upon. So, अभी लॉकडाउन में अगर हम बात करें तो कोविड-19 में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देयर हैज बीन राइज इन द नंबर ऑफ केसेस व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत अगर केसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो जनरली वो स्पाउसेस के द्वारा, जो हस्बैंड्स के द्वारा की गई उत्पीड़ना है महिलाओं के अगेंस्ट। So why I'm mentioning all this is that कि एक तरफ जहाँ युवा पीढ़ी हमारी बहुत सक्षम है, बहुत समझदार है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सोसाइटी में ऐसे इश्यूज हैं जिसमें हमें सोचने की आवश्यकता है, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात हो, चाहे वो इलिसिट यूज ऑफ ड्रग्स हो, चाहे वो ट्रैफिकिंग की बात हो, even in, I would not mention the states, but there are few states where this child trafficking as well as women trafficking, I mean, both the things are existing, and it is not reducing so as to say in last few years. So हम क्यों ये सब चीजों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम क्यों ये टॉलरेट कर रहे हैं, why we are tolerating and why we are allowing all these things to happen. This is something which we all need to ponder upon. एंड एज अ सोसाइटी ये हमारी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंश्योर करें कि जहां हम देश के विकास के लिए बात करते हैं तो वहां पे पुरुष और महिला का समान अधिकार अगर हमें लाना है तो जेंडर पैरिटी, लैंगिक समानता, लैंगिक समानता को हमें एनकरेज करने की जरूरत है, उसको हमें प्रमोट करने की जरूरत है। और हमारी फीमेल्स के लिए स्पेशली, जो भी मैं जहाँ भी मेरा प्रोग्राम होता है, जहाँ भी मेरे को बात बोलने का मौका मिलता है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को रिस्पेक्ट दीजिए और उनको आगे बढ़ने का मौका जरूर दीजिए, बिकॉज इफ यू एजुकेट अ गर्ल, यू एजुकेट द एंटायर फैमिली एंड शी इन टर्न वुड टेक केयर ऑफ द सोसाइटी अराउंड हर, सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, मैं बीच में मैंने एक बात बोली थी कि यूथ को हमें स्किल सेट, कैपेसिटी बिल्डिंग, इसकी तरफ हमें जो है लेके जाना है। तो जितने भी हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इनफैक्ट मिनिस्ट्री की ओर से भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स की ओर से भी यही रिक्वेस्ट की जाती है कि हम जो भी हमारे कोर्सेज पर चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, सो द थिंग इज कि देयर शुड बी फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं कि
पास हो रहे हैं कैंडिडेट्स, दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड। और साथ ही साथ में क्वालिटी के साथ में हम ये भी इंश्योर करें कि वी आर एबल टू गिव अ राइट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन टू द यूथ। इवन दो आई टोटली एग्री कि आज का यूथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है। इफ आई कंपेयर इट टू माई ओन टाइम, सो अगर मैं 15 से 20 साल पहले की बात करूं, जब मैं कॉलेज में थी, आई पास आउट इन 2003, तो तब से लेके अगर मैं आपकी बात करूं तो देयर इज सो मच ऑफ एक्सपोजर, सो मच ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। पीपल कैन सिट एंड they can do their online courses, there are options available। तो ये जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या इस तरीके के जो हमारे पॉसिबिलिटीज हैं उसको हम एक्सप्लोर करें और हम ये कोशिश करें दैट वी आर प्रोवाइडिंग द राइट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन, द राइट काइंड ऑफ आई वुड से स्किल सेट्स अमंग द यूथ। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन दैट मॉरल एजुकेशन, या हम अगर बात करें कि सोसाइटी की तरफ जो हमारा दायित्व है उसके ऊपर भी हम ध्यान दें। और यूथ को ये बहुत ज़्यादा समझना होगा कि जो भी वो कर रहे हैं, जो भी वो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जो भी कोई आगे whether they start a business, they become entrepreneurs or they enter into civil service or they enter into medical profession या प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करते हैं, तो हमेशा ये माइंड में रखें कि सोसाइटी से जो हम ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं वी शुड ट्राई एंड गिव बैक। So this ecosystem will only survive when we are respecting each other, when we are kind of having that mutual give and take relationship. So if you're taking from the society, if you're taking from your parents, if you're taking from your family, it is also your own responsibility to ensure that you are giving them adequately, और आप उनको दे रहे, अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने फेलो सिटीजन्स को और अपने पीपल अराउंड यू। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, जो मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करी, तो हम आज भी देखें तो हमारी देश में द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्वाइट हाई, इन द सेंस कि स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है। एंड देन द यूथ इज काइंड ऑफ क्रिटिसाइजिंग और कंप्लेनिंग टू द सिस्टम कि हमारे पास एडिक्वेट जॉब्स नहीं हैं एंड द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू गिव देम एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट। So इसके लिए government is taking lot of steps, present government especially, making it, but we also need to promote our own entrepreneurs, we also need to promote our own startups, make in India, skill India, इतना सारा अब जो है यूथ को encourage करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है, जिसमें they are promoting that we become entrepreneurs and we become employment creators। हम अपना कुछ सेटअप करें और उसमें हम और लोगों को भी जोड़ें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। तो इसकी तरफ भी आप लोग ध्यान दो। मेरी तरफ से आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है। एंड नॉट स्पीकिंग मच, आई वुड से दैट यूथ इज आवर स्ट्रेंथ, यूथ इज द पावर ऑफ आवर कंट्री। एंड अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मैंने हमेशा उनकी बुक्स पढ़ी हैं, एक बार मिलने का भी मौका मिला, तो उन्होंने एक बात बोली थी दैट इट इज़ वेरी इजी टू ड्रीम, स्पेशली वो यूथ के लिए, क्योंकि वो विजन 2020 में उन्होंने काफ़ी सारी बातें लिखी। तो वन थिंग ही यूज्ड टू से दैट इट इज़ वेरी इजी टू ड्रीम बट इट टेक्स लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, गट्स एंड effort to pursue those dreams। And then he said, dream, dream, dream। So when I talk about dream, मैं इस ड्रीम को फर्दर आगे लेके जाती हूँ। So I have an acronym for dream, so which I say like this: diligence, resilience, energy, ambition, motivation। I'll repeat here: diligence, resilience, energy, ambition, motivation। ये जो 5 कंपोनेंट हैं, ये 5 कंपोनेंट अगर हम अपने अंदर, सबके अंदर हैं इनफैक्ट, लेकिन हम अगर अपने आप को बार बार हम अपने आप को याद अगर कराते रहें, सो इट वुड बी
really very good, and there is nothing which can stop you from achieving your dream. And I always say that young India, you are the future leaders. So dream and achieve, right? So my best wishes to all of you. May you all become successful. And yes, one more point I just forgot to mention. It is with respect to the mental health. We are seeing that बहुत सारे issues, depression के cases भी सामने आ रहे हैं, especially COVID-19. People are getting demotivated because there has been a change in the normal kind of a lifestyle. People are working from home. या displacements भी हुआ है. There are various kind of issues which we as human beings are facing, and people are suffering from mental health issues. So I would just like to mention that you, young India, impossible कुछ भी नहीं है. I know that we are all facing tough time. It has been difficult for all of us to face this COVID-19 pandemic as a humanity. But किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है हमको. And we have to kind of think that good times will come, and you keep yourself motivated. आपको जो भी चीज अच्छी लगे, you like to listen to music or exercise करना या yoga, meditation, talk to your friends, whatever keeps you motivated, please do that. Stay focused, be motivated, stay happy and stay healthy. अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, अगर आप खुश नहीं रहेंगे, your family would be affected, and ultimately नुकसान आपका खुद का और आपके परिवार का है. Nobody else would be at loss unless by your own thing. Only you and your family would be at loss if something happens to you. So my best wishes to all of you, and stay happy, stay healthy, and thanks to NSS DAV for inviting me over here. And if there is anything further मेरा जिसमें feedback आपको चाहिए, तो I am available. I would be very happy to answer if there are any questions or any feedback is required from my own side. Thank you so much. Thank you so much, madam, for such an enlightening talk. It will surely inspire the youth and help to bring about a change on the face of our country. There are some curious spectators who would like to advance their questions to you. So the first question is, even after several measures taken by the government, there is still less skill development in youth. So what do you suggest to overcome the situation? So स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो लास्ट 3 से 4 सालों में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. एंड स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत वी आर सीइंग मेनी स्टार्टअप्स कमिंग अक्रॉस वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और सिर्फ बड़ी स्टेट ही नहीं, कंपैरेटिवली स्मॉलर स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड इवन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ पे भी इसका बहुत बेनिफिट गया है. I cannot recall the statistics, but I think this is a positive development which has come up. And I would like to request you all कि जितने भी इस तरीके के स्कीम्स हैं उनके बारे में आप खुद भी पढ़ो. कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हम कैसे इस चीज़ का बेनिफिट लें. तो आप खुद भी पढ़ें, और जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ के सब डिविजनल ऑफिसर या वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर भी होते हैं, या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के भी ऑफिसर वहाँ पे पोस्टेड रहते हैं. उनसे बात कीजिए, उनसे मिल के कोशिश कीजिए. एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से केसेस जितने भी क्वालिफाई करते हैं, गवर्नमेंट इज वेरी कीन टू सपोर्ट देम. स्पेशली नीति आयोग में देयर आर लाइक एम है अटल इनोवेशन मिशन, सो उसके अंदर भी दे आर प्रमोटिंग दीज थिंक टैंक्स. तो बी इन टच विद देम, उनकी वेबसाइट देखिए, उनके अपडेट्स देखिए, एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट you will be also able to get through this. Yeah. Thank you, ma'am. The second question which many people are asking is, can a person pursuing courses in a discipline other than humanities simultaneously prepare for the civil services? Yes, of course. So civil services gives you the option of having, I mean, they have various number of subjects. I don't recall the exact number of subjects, but there are various number of subjects, which includes mathematics, which includes chemistry, which includes commerce. Like my optional were commerce and public administration. और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो ही सब सिविल सर्विसेज की तैयारी अच्छी तरह कर सकते हैं. पीपल फ्रॉम ऑल स्ट्रीम्स, इवन
during their medical preparation, candidates are starting preparation for civil services. Yeah, even after IIT also, they are giving civil services examination. So there is no bar to that. The only thing is that I would like to suggest is that कि आप तैयारी कब शुरू कर रहे हैं, that is very important. बिकॉज सिविल सर्विसेज में जब आप एग्जाम जब आपको देना है तो उससे कम से कम 1 साल पहले आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि 1 साल तो एग्जाम में ही लग जाता है. सो 1 ईयर इज प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का स्टेज ही ले जाता है, तो उससे 1 ईयर पहले तक आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए. एंड टू असेस वेयर यू आर, आई थिंक यू गो थ्रू द सिलेबस वेरी प्रॉपरली, जो यूपीएससी इशू करती है सिविल सर्विसेज का सिलेबस. साथ ही साथ में लास्ट 3 सालों के क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए. Have a look at the last 3 years question paper and the syllabus and you will get to know कि आपको कैसे तैयारी शुरू करनी है. और लैंग्वेज का कोई बार नहीं है, सब्जेक्ट का कोई बार नहीं है. आपकी अंडरस्टैंडिंग किस सब्जेक्ट पे कैसी है उसके हिसाब से आप ऑप्शनल लीजिए. सो आई डोंट थिंक कि किसी और सब्जेक्ट से अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है या उसको कोई नुकसान है. आई रियली डोंट थिंक सो. Thank you, ma'am. Ma'am, another question is that what kind of foreign assignments can an IS officer take up? So, foreign assignments, so it actually depends on the career progression of an officer. So initially you can take a like foreign study, matlab there are under DFFT. So DFFT scheme hota hai which is which is monitored by DOPT, Government of India. तो DOPT के थ्रू ये DFFT में अप्लाई करते हैं कैंडिडेट्स, एंड यू कैन गो फॉर 1 year 2 year कोर्सेज इन वेरियस फॉरेन यूनिवर्सिटीज. Besides that, if you ask me, actually foreign assignments बहुत ज़्यादा एक IS ऑफिसर को I mean you don't expect कि वो throughout the career ही foreign में रहेंगे. So why I'm saying is that कि there are initial years where you are supposed to work in field. So initial say around 7 to 10 years, जब तक आपका सारा postings नहीं complete होता, starting from SDM shape up to DM and collector, and then maybe when you reach the rank of a director in the state or rank of a commissioner in a state, so up to that point you are generally in field. और उसके बाद में generally officers think of taking up a foreign study या taking a foreign assignment. So और वो भी जो होगा because we are governed by the deputation rules. So deputation जो है इंटर कार्डे डेपुटेशन लिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है, सेंट्रल डेपुटेशन लिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है, फॉरेन असाइनमेंट्स लिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है. तो ये सारे जो हैं आई will not be able to give a very straightforward answer. It actually depends on the career progression of an officer, and it is in any case a limited number of years which an IS officer may get to serve in foreign areas, and which are very less as compared to Indian Foreign Service. अगर आप Indian Foreign Service से compare करें तो उसमें of course ज़्यादा opportunity रहती है बाहर रह के काम करने की rather than being in the IAS. Yes. Thank you, ma'am. Ma'am, another question is, we always expect the labor group to be loyal and hardworking towards their work, and in return they don't get any promotion. Sorry. Please repeat the question. I missed. Voice was not starting. से बोलिए. Yes, ma'am. We always expect the labor group to be loyal. Labor, okay. Yeah, to be loyal and hardworking towards their work, and in return they don't get any promotion. So what is your take on this one? So I think the question is kind of incomplete. I mean, labor in what sense? मतलब आप बोल रहे हैं कि labor gives a lot of hard work and in return they don't get any promotion. I really don't think, मतलब labor जो laws हैं India में, so labor laws are giving various kind of protection, whether it is ESI or whether it is PF and health insurance. So of course state specific कुछ regulations अलग होते हैं, बट ये जो सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत दे आर गेटिंग गुड नंबर ऑफ प्रोटेक्शन. एंड द थिंग इज कि इवन अगर हम प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशन का तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक प्रोग्रेशन चार्ट होता है, दैट आफ्टर हाउ मेनी इयर्स वन वुड बी प्रमोटेड. लाइक इतने सालों बाद अ गैंगमैन वुड बी प्रमोटेड टू अ रैंक ऑफ अ जूनियर इंजीनियर, या जूनियर इंजीनियर कितने सालों बाद
इवन हमारे गवर्नमेंट में भी कितने सालों बाद जूनियर इंजीनियर एसडीओ बनेगा, एसडीओ कितने सालों बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेगा. सो दीज आर द कुछ मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जो कि हर प्रोफेशन में है, चाहे वो सिविल सर्विस है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्री है. एंड अगर कोई फॉलो नहीं करता है उसे, तो ऑफ कोर्स अंडर द लेबर लॉज वी हैव वेरियस मैकेनिज्म्स, एंड द कंसर्न्ड पर्सन जो सफर कर रहा है, जो कि विक्टिमाइज है, he can also approach the labor court. There are mechanisms for arbitration and conciliation also available. So all these things are there, but straightforwardly ये बोलना कि वो हार्ड वर्क करते हैं पर उनको प्रमोशन नहीं मिलता, I think that will not be appropriate. There might be some instances, of course, I do not deny that. And the thing is कि अब तो companies वैसे भी बहुत ज़्यादा vigilant हो गई हैं because of various kind of redressal mechanisms available. लेबर यूनियंस बहुत एक्टिव हो गई हैं. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस आजकल हमने खुद देखा कि कंपनीज भी बहुत प्रोएक्टिव हो गई हैं टू इंश्योर द लेबर वेलफेयर मेजर्स. थैंक यू. Thank you, ma'am. Ma'am, the last question asked by a participant is, why do you think that person from science disciplines make it more into civil services? पर्सन फ्रॉम साइंस डिसिप्लिन, सॉरी, Make it La- more into civil services. मेक इट मोर. Yeah. ओके. स्टैटिस्टिक्स में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है कि मेक इट मोर. सो बेसिकली जो सिलेक्शन है दैट इज अ परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग. यू अंडरस्टैंड? अगर 10 लाख फॉर्म भर रहे हैं तो उसका परसेंटेज हम देखें कि कितने परसेंटेज कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम के थे, कितने परसेंटेज कैंडिडेट्स कॉमर्स के थे, कितने आर्ट्स के थे, और उसके अगेंस्ट अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर क्वालिफाइंग, कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइंग, I really don't think कि बहुत ज़्यादा skewed रहेगा data in favor of the science stream. It would be a mix. Every batch has mix of candidates. अगर हमें ये लगता है कि साइंस बैकग्राउंड वाले ज़्यादा आ रहे हैं, वो मे बी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो कैंडिडेट्स अपीयर ही ज़्यादा हो रहे हैं. I mean, after even they become doctors or even if they become engineers, they are coming and joining civil services. That may be a passion or that may be a inner motivation or a drive. एंड आर्ट्स के स्टूडेंट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स कोई और प्रोफेशन में जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है. बट इनहेरेंट बायस कोई भी नहीं है, आई वुड से. एंड एग्जाम जो है इट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी. मतलब इसमें आप देखिए जीएस कॉमन है सबके लिए, सी सैट में मेंटल एप्टीट्यूड और एवरीथिंग इज कॉमन. ओनली डिफरेंस इज इन मेंस ड्यूरिंग द ऑप्शनल. और ऑप्शनल भी आप बेसिक डिपेंडिंग ऑन योर ओन बैकग्राउंड, इंटरेस्ट एंड कंफर्ट आप ऑप्शनल ले सकते हैं. देयर आर वेरियस नंबर ऑफ ऑप्शनल्स अवेलेबल व्हिच अ कैंडिडेट कैन ऑप्ट. सो आई रियली डोंट थिंक सो कि इनहेरेंटली उनको कोई एडवांटेज है. हाँ, मे बी ये हो सकता है कि क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही अपीयर ज्यादा हो रहे हैं तो वो परसेंटेज मे बी लिटिल बिट स्क्यूड इन देयर फेवर. एंड आई वुड ओनली मेंशन हियर दैट irrespective आप किस भी स्ट्रीम से हैं, इट इज अल्टीमेटली योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन and your focus study, जिसमें I always say repeated revision. आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आप कितना याद रह रहा है, कितना आप उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, that is most important. That actually will ensure कि आप सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं. That is one thing which we all need to take care. So I think that जिसको भी अगर मन है सिविल सर्विसेज एग्जाम देने का, सिलेबस को ध्यान से पढ़िए, लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर देखिए, सिलेक्ट योर ऑप्शनल प्रॉपरली, एंड वंस यू आर सिलेक्टिंग डू इंश्योर दैट यू आर गिविंग योर 100%. एंड I always say 4 P's: passion, patience, perseverance and positive outlook. तो पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक, जुनून और आपका संघर्ष को कैरी करते रहने का जो आपका पेशेंस है और आपका सहनशीलता है, उसी पे निर्भर करेगा कि आप सफलता आपको मिलती है या नहीं मिलती. एंड आई एम वेरी मच श्योर कि विद 100% ट्रू एफर्ट्स one definitely achieves which one wants in life sooner or later.
Thank you so much, ma'am, for addressing our questions. With this, we bring this webinar to an end. I would like to request our President of NSS PGDAB, Shivangi Dwivedi, to extend a vote of thanks on behalf of entire NSS fraternity. Good afternoon, everyone. I, Shivangi Dwivedi, on behalf of the entire team of National Service Scheme, PGDAB College, extend a very hearty vote of thanks to our esteemed guests for enlightening us on the important aspect, youth power taking India ahead, which is so important in these difficult times. Your years of research, your depth of understanding of user interfaces, and your ability to present the subject in such an interesting way produced one of the most memorable evenings in our group's history. Once again, I would like to thank you, ma'am, for sharing with us your findings and opinions today. It was indeed a valuable session and has surely helped all of us to gain knowledge on this important topic. I would like to take this opportunity to place my hearty thanks to our Honorable Principal, Sir Dr. Mukesh Agrawal, for all the motivation and continuous guidance, respected Vice Principal Dr. Krishna Sharma, and to our dignified faculty members for your presence, and also to our beloved participants for all the cooperation throughout the webinar. I would also like to thank our program officer, Mr. Sanjay Kumar Singh, and co-convener, Dr. Aparna Pandey, for the guidance they have extended to all of us at the occasion and to make this webinar successful. Last but not the least, a wholeheartedly dedicated team for the continuous efforts to make this webinar possible. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thanks, ma'am. Thanks. Lot of thanks. Okay. Thanks.